Hello everyone, I am Dr. Ashish Khan Chaudhary. Lecture number 2 regarding types of tribes in India. Friends, in previous lecture we covered meaning of the tribes and also know what is the importance of the tribes, which type factors decided who is tribes. After that, in this unit, in this lecture, we know classification of Indian tribes, types of Indian tribes on the basis of geographical distribution, types of Indian tribes on the basis of cultural and other diversity, what is the socio-economic features of Indian tribes, what is the cultural diversity of Indian tribes, also different initiative and policies provided by the government, and which type factors faces by the Indian tribes. Firstly, we know that introduction of Indian tribes. भारत में आदिवासी या स्वदेशी समुदायों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाती है। उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में कहा गया है और भारत का संविधान इन जनजातियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान और सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति शब्द को भारतीय अनुच्छेद के सेक्शन 362 सब सेक्शन 25 के तहत परिभाषित किया गया है। इन जनजातियों को संविधान की अनुसूची 5th में लिस्टेड रखा गया है। साथ ही साथ शेड्यूलिंग 6 के तहत नॉर्थ ईस्ट या जहां पर ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां हैं उन लोगों को स्पेशल प्रावधान शेड्यूल 6 में दिया गया है। इन सभी को संवैधानिक सुरक्षा प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ट्राइबल एरिया को स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं। साथ ही साथ इनके लिए एक स्पेशल लॉ बनाया है और उनको एक विशेष एक्ट भी दिया है और उनको डिफरेंट टाइप्स के स्कीम्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स, उनके एरियाज में डिफरेंट टाइप्स के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसीज भी बनाया है, जिसके तहत हम ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है कि जिससे ट्राइब्स हमारे मेन स्ट्रीम के साथ अटैच हो सके। साथ ही साथ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप के उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट स्पेशल फंडिंग कर रही है ताकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, कम्युनिटी एम्पावरमेंट हो सके, उनके नेचुरल रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, उनका सोशल स्टेटस बढ़ सके, साथ ही साथ उनके लिटरेसी को बढ़ाया जा सके, उनके एम्पावरमेंट को बढ़ाया जा सके। विद द हेल्प ऑफ द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सके। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स on the basis of the different studies, government try to define tribes in two parts. First is geographical distribution, second is cultural and language diversity. In geographical distribution, Northeast India, Central India, Western India, Eastern India, South India, ये 5 पार्ट्स में बांटने का प्रयास किया गया है
और कल्चरल एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी के बेसिस पे द्रविडियन, इंडो आर्यन, तिब्बतो बर्मन ट्राइब्स के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ इंडियन ट्राइब्स on the basis of geographical distribution. The tribes of the region of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Himalayan areas like border Uttar Pradesh and Bihar come under this zone because they are Bhotia, Tharu, Buksha, Janfari, Bhoksha, Gurjar, they are stay. They all have the special features they related to northeast regions. The major problem of the tribes of this zone are lack of communication, poverty, illiteracy and land. क्योंकि इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में लैंड, एजुकेशन इनसे रिलेटेड अभी जो फैसिलिटी वहाँ के ट्राइब्स को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट इज सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन द ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश come under this zone. The major tribes of Chhattisgarh are Gond, Baiga, Maria and Ahuja. They are largely concentrated in Mandla district of Madhya Pradesh, Bastar district of Chhattisgarh and also other eastern region of the Andhra Pradesh. There are the lot of the problems related to the poverty, illiteracy and lack of communication. South region. There are the tribes of central and south western Ghats who are expanded towards the south of 20° latitude. The tribes of western Andhra Pradesh, Karnataka, western Tamil Nadu and Kerala come under this zone. The most important tribes of this zone, Nilgiri region, are Toda, Kota and Bagda. The other major tribes of this zone are Kuruma, Kadar, Panyam, Chenu, Allar, Nayak and Cheti. Eastern zone. Eastern zone is play an important role in the tribal entrepreneurship. The tribes of Jharkhand, West Bengal, Odisha and Bihar come under this zone. The tribes of the Odisha are Juang, Kharia, Khond and Bhumiji. The tribes of the Jharkhand are Munda, Oran, Santhal, Ho and Birhor. They are the suffering from lack of communication. They speak Koi and Munda language. So there are the special problems related to communication क्योंकि वो हमारे मेन स्ट्रीम के साथ अपने लैंग्वेज के कारण जुड़ नहीं पाते हैं. वेस्टर्न जोन इज आल्सो divided by the geographical distribution. In western zone, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, western Rajasthan, northern Andhra Pradesh. The major tribes are Rajasthan are Bhil, Garachia, Meena, Banjara, Sanfi and Saharia. There are a special category nomads जिनका की कोई जगह ही नहीं है, वो हमेशा पूरे देश में घूमते रहते हैं. इस गवर्नमेंट ने अभी पिछले कुछ सालों में उनको एक स्पेशल प्रोविजंस दिया है ड्यूरिंग कोविड और उनको घुमंतु जनजातियों के नाम से भी कहा जाता है. जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप में भी कुछ जनजातियां हैं. द मेजर ट्राइब्स ऑफ इन दिस एरिया ओंग, जरवा, सेंथिल who are
suffering from the lot of the problems. Next is types of Indian tribes on the basis of cultural and linguistic diversity. इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में बांटा है, द्रविडियन ट्राइब्स, इंडो आर्यन ट्राइब्स एंड तिब्बतो बर्मन ट्राइब्स। द द्रविडियन ट्राइब्स जो है वो नीलगिरी हिल्स एरिया में मोस्टली पाए जाते हैं और उनका एक दूसरे से फैमिली रिलेशन रहता है और वहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, टोडा, गोंडी, टुई दिस टाइप के लैंग्वेज बोले जाते हैं, जिसके बेसिस पे वहाँ के लोग आपस में ही एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और प्रयास करते हैं कि अदर सोसाइटी के साथ अटैच ना हो सके, जिसके कारण वो मेन स्ट्रीम से अभी भी बाहर हैं। नेक्स्ट आता है इंडो आर्यन ट्राइब्स। यहाँ पे जो भारत में सबसे अधिक पॉपुलेशन है, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पे भील, संथाल, मुंडा सबसे ज़्यादा ट्राइब्स पाए जाते हैं और इन लोगों का हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, राजस्थानी, असमी, मैथिली या भोजपुरी लैंग्वेज, ये सारे के सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, जिसके कारण ये सोसाइटी हमारे मेन स्ट्रीम के साथ कुछ टच में है, जिसके कारण ये देखने को आया है कि यहाँ पे ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के जो ऑप्शन है या ट्राइबल मार्केटिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन है या ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को देखने के बाद ये महसूस होता है कि अगर हम ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाएं या ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड लोगों को समझाने का प्रयास करें, तो ये ट्राइब 100% हमारे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकते हैं। थर्ड इज तिब्बतो बर्मन ट्राइब्स। दे आर स्टे इन नॉर्थ ईस्ट एरियाज। वहाँ पे नागा ट्राइब्स या बोडो ट्राइब्स पाए जाते हैं। स्पेशली वो हिल एरियाज हमारे देश के महत्वपूर्ण शहरों के साथ टच में नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है या वहाँ पे सुविधाएं इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाई हैं, जिसके कारण ये एरियाज हमारे मेन स्ट्रीम से दूर है। हमें प्रयास करना चाहिए कि इनको अपने मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए। नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडियन ट्राइब्स on the basis of the geographical distribution and on the basis of the cultural and linguistic diversity, there are the lot of the socio-economic features of Indian tribes. हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइब्स के आधार पर अगर ट्राइब्स का एक अध्ययन किया जाए और वहाँ पे ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए, तो ये एरिया हमारे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि हंटिंग, गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर, शिकार करना, इकट्ठे होना, कृषि करना, ये एक ऐसे प्राइमरी लेवल के फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम सारे के सारे लोग एक सोशल इकोनॉमिक फीचर्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे लैंड एंड लैंड, मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज ट्रेडिशनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर livelihoods. However, due to various factors including displacement, land alignments and change in environmental conditions, we can develop their threats. Economic marginalization, ट्राइब्स इन जनरल हमेशा इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन से डरते हैं, तो गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि इस एरिया में डिफरेंट टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें या डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें,
जिससे कि ये हमारे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकें। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन इज ए आल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। इफ we provided different education on different levels, we can reduce the poverty, we can reduce the other activity. Healthcare is a also important factor. It means access to healthcare facilities can be a challenge for the many tribal communities, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना पसंद ही नहीं करते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो इट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप डिफरेंट टाइप हेल्थ केयर एक्टिविटी इन ट्राइबल एरियाज, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर with the help of the government schemes, with the help of the government program, housing and infrastructure and other skills developed in tribal areas, they interact with mainstream of the society, and it is government responsibility to identify the different cultural art, different costumes, different traditional language, different ट्रेडिशनल ड्रेसेस, क्योंकि वो सारी के सारी चीजें एक भारतीय इंडियन कल्चरल हेरिटेज है और एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सोशियो इकोनॉमिक फीचर्स को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करे। कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन ट्राइब्स। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति एक विविधता का घर है। यहाँ देश भर में फैली विभिन्न जनजातियां या अनुसूचित जनजातियां, विशेष रूप से जिनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है, उनकी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, उनके एक परंपराएं हैं, उनके एक रीति रिवाज हैं, उनकी एक भाषा है, उनका एक जीवन जीने का तरीका है, जो कि भारतीय जनजातियों की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाएगा। अगर हम ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोटेक्ट करेंगे तो भारतीय जनजाति विभिन्न भाषाएं परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है और ये भाषाएं धीरे धीरे विलुप्त नहीं होंगी और मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ेंगी, क्योंकि गोंडी, संथाली, खासी, मिजो, ये जो भाषाएं हैं ये धीरे धीरे अब विलुप्त हो रही हैं। उसी प्रकार जनजातियों का एक पारंपरिक कला और स्किल्स है। भारत में जनजातियों के पास कला और शिल्प की बहुत ही समृद्ध परंपरा है। प्रत्येक जनजाति में अक्सर मिट्टी के बर्तन, बुनाई, पेंटिंग और एक से एक अच्छी अनूठी शैलियां हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग वारली जनजाति का एक स्पेशल कैरेक्टर है, जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और इस कल्चरल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमको ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। संगीत, म्यूजिक एंड डांस, इट इज ए आल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज म्यूजिक एंड डांस आदिवासी कल्चरल का एक स्पेशल पार्ट है। विभिन्न जनजातियों के पास म्यूजिक और डांस के अपने विशिष्ट स्टाइल है और उनका अपने त्योहार के साथ, अपने विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों के साथ और दैनिक डेली रूटीन के कार्यों के साथ उन संगीत और म्यूजिक को या डांस को वो अपने यहाँ यूज करते हैं। उदाहरण के लिए असम में बोडो जनजाति का बिहू डांस, मिजोरम का चेराव डांस आदिवासी नृत्य का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको धीरे धीरे प्रमोट करें। विभिन्न प्रकार के त्योहार, इट इज ए आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। ट्राइबल जनजाति में हर प्रकार के त्योहार को वो लोग बहुत ही विधिवत ढंग से मनाते हैं और वो आप ये कहें कि वो उन त्योहारों में घुस जाते हैं।
ये त्योहार अक्सर फसल, बुआई या अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे कि हम लोग ऊपर विभिन्न ट्राइब्स एरिया में जाते हैं, शादी हो गया या किसी का जन्मदिन हो गया, इन सब पे वो लोग करते हैं। स्पेशली गोंडों के बीच नागपंचमी, बोडो के बीच बिहू और नागाओं के बीच हार्नबिल महोत्सव आदिवासी त्योहारों का एक ही बहुत ही विलक्षण उदाहरण है, जो कि हम सभी मेन स्ट्रीम में रहने वालों के लिए जरूरी है, ताकि ये लोग वहां पे जाएं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों और इन चीजों को सीखें, जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का रूप ले सकता है। सामाजिक संगठन, जनजातीय समाज में अक्सर सामाजिक संरचनाएं और संगठन होते हैं। उनके पास अपने लीडरशिप स्टाइल होती है, उनका अपना एक कम्युनिटी होता है और उनके एक अपने रिलेशनशिप होते हैं, और उस सोशल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स कमिटीज, टू डिफरेंट टाइप्स कल्चरल exchange program to develop his thoughts, different types cloth and ornaments, different types housing styles, different types foods। ये सब एक ऐसे चीज हैं जो कि कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन ट्राइब्स को प्रमोट करते हैं। जैसे राजस्थान में भील जनजाति का पोशाक मेघालय के गारो जनजाति के पोशाक से अलग है, लेकिन दोनों पोशाक अगर मेन मार्केट में आए तो उनका एक एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। उसी प्रकार असम में मिसिंग जनजाति स्टील घर बनाकर जो रहती है, वो भी एक टूरिज्म का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। साथ ही साथ मेघालय में खासी या झारखंड में संथाल जनजाति का भोजन बनाने का जो स्टाइल है, उन दोनों को भी हम लोग देख सकते हैं कि वो कल्चरल डाइवर्सिटी का एक अद्भुत नमूना है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम मेन स्ट्रीम में रहने वाले लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आध्यात्मिक विश्वास की बात करते हैं, हमारे जनजातीय समुदाय की अक्सर आध्यात्मिक विश्वास हम आपसे ज्यादा है। वो नेचुरल रिसोर्स को या अन्य कई रिलीजन को एक स्पेशल तरीके से पूजा पाठ करते हैं, ताकि समाज में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इसी प्रकार और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट, फेस्टिवल, रिचुअल्स, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन को कल्चरल डाइवर्सिटी के बेसिस पे बताता है। इफ वी ट्राई टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, दे कैन attach with mainstreams। In last conclusion, on the basis of the previous two lectures, we can say there are the lot of the diversity in Indian tribes. If we preserve and protect tribal cultures, we can say tribal entrepreneurship is an important part of the society. If we develop tribal entrepreneurship, tribal tourism, ट्राइबल मार्केटिंग इज आल्सो डेवलप, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब ट्राइबल मार्केटिंग होगा तो ट्राइबल टूरिज्म होगा और तभी ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप होगा। क्योंकि ट्राइबल टूरिज्म, ट्राइबल मार्केटिंग जब रहेगा तो ट्राइबल प्रोडक्ट खरीदने के लिए पब्लिक अपने आप वहां पर जाएगी, जिसके कारण जाने के कारण ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल टूरिज्म बढ़ेगा। और जब ट्राइबल मार्केटिंग डेवलप होगा तो ट्राइबल टूरिज्म डेवलप होगा, और इन दोनों के डेवलपमेंट से ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप डेवलप होगा, क्योंकि उससे लैंग्वेज, ट्रेडिशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, म्यूजिक एंड डांस, फेस्टिवल एंड रिचुअल्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लॉथिंग एंड ऑर्नामेंट्स, हाउसिंग आर्किटेक्चर्स, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे के सारे चीज मेन स्ट्रीम के साथ धीरे धीरे अटैच होगा। और इन सभी चीजों के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे
ट्राइबल स्टडीज को भी प्रमोट करें। नेक्स्ट क्लास में हम सभी ये जानने का प्रयास करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, मैनेजरियल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ट्राइब्स के डिफरेंट कल्चरल डाइवर्सिटी को जानने का प्रयास किया है। इसके बेसिस पे अगली क्लास में हम सब लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योर, मैनेजरियल एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरियल, इन सभी में क्या डिफरेंस है, इनका क्या यूज है। थैंक यू।